this is the agenda. So today is the first day. So we will be going a little bit slowly as these things are going to be normalized, and according to your feedback, we will be little bit moving forward or moving fast from tomorrow. So this is the agenda of our, this is our agenda. So see from here what all things we will be covering. So I think my screen, I have shared my screen. You can see the agenda of our this 6 days program, 7 days program. So what all things we will be using. Uh, so what all things we are going to, our first agenda is introduction to ESP8266. So what is this ESP8266? I will show you. This is an open source hardware platform which is used for building this IoT based project. So this ESP8266 is capable of handling both hardware as well as software part of the program. So this is a very good chip, and it is a very low cost chip. So all of you, once you finish this program, you can purchase this chip. This is a very low cost chip, something around 300 or 350 rupees. You will get this chip, and you can start developing lot of interesting projects on this ESP8266. So this is the main chip which is used for integrating our hardware to the IoT platform. Now see what is basically an IoT. I will give you an understanding. So IoT is nothing. It is a combination of a cloud system along with the hardware. So two parts are there. One is the hardware part, and another one is the software part. And all of you know that this IoT system, the data is going to be logging onto the internet. So on net there will be a platform which will be supporting those data. So there are so many platforms. We will see all those platforms. Now, next part of our agenda will be how to program this ESP8266. How to program this ESP8266. For programming ESP8266, we are using Arduino IDE. So, lot of students, they might have done some kind of programming on Arduino IDE, and I think those students, they are going to find it little bit easy. But then also see, for ESP8266, there are a lot of changes which we have to do to the Arduino IDE. So I will be teaching how to integrate your old Arduino IDE to ESP8266. So this is going to be our second part, how to integrate this ESP8266 to our Arduino IDE. Next, the third part of our agenda is going to be programming of ESP8266. So in the third part of our agenda, we will be programming ESP8266. So what all programs we will be making? We will be making simple internet-based programs and simple interfacing programs like LED sensors, current sensors, potential transformers, light sensors, relays, switches, small programs I will be teaching you. And then the fourth part of our agenda is I told you that IoT is a combination of a hardware as well as it is a combination of a software, a cloud platform. So see, the whatever data will be coming from your transformer, or whatever data will be like transform. If you take a simple case of a transformer, what all data you need from a transformer? When the transformer is loaded, you need the load current, you need the loading voltage or the terminal voltage at the time of the load. You will be needing the cos of phi, the power factor, and if it is a three-phase transformer, then the line voltage, phase voltage, then line current, then you will be needing the power factor per phase, then you will be needing the active power, reactive power. These are some of the parameters of a transformer which in a typical case, I am considering a typical case of a electrical system, a transformer which is located in a remote location. एक ट्रांसफार्मर है, वो एक रिमोट लोकेशन पे लोकेटेड है, तुम्हारे समझ लो कि तुम्हारे एरिया में लोकेटेड है. अब वो ट्रांसफार्मर जो है, तुम्हें डेटा चाहिए, उस ट्रांसफार्मर का डेटा तुम्हें भोपाल में चाहिए, तो क्या ट्रांसफार्मर का क्या क्या डेटा तुम्हें चाहिए? तुम्हें ट्रांसफार्मर का लाइन वोल्टेज, तुम्हें ट्रांसफार्मर का फेज वोल्टेज, तुम्हें ट्रांसफार्मर का लाइन करंट, तुम्हें ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर पर फेज, तुम्हें ट्रांसफार्मर का एक्टिव पावर, तुम्हें ट्रांसफार्मर का रिएक्टिव पावर, ये सारी चीजें मॉनिटर करना है, क्योंकि देन ओनली यू कैन से वेदर द ट्रांसफार्मर इज इन द केस ऑफ ओवरलोडिंग और नॉट. इफ द ट्रांसफार्मर इज इन द केस ऑफ ओवरलोडिंग, then you can take certain action on that particular area, and then you can manage, or you can put one more transformer to avoid the overloading of that transformer. So there are so many advantages, and then with the help of that same data, you can apply the concept of smart grid. So what is the concept of smart grid? I will tell you afterwards. So so this type of monitoring. Now see, if the data is there will be a lot of data, because see, the power factor, current, phase, line voltage, this changes every second.
So nothing is means all the data is very very dynamic in electrical systems. Everything is very very dynamic. So see, there are a lot of things means you have to you have to have this data onto a particular platform. So this particular platform, there are so many platforms. So how, like I will be teaching you 3 platform where you can log in your data. This will be free. You don't have to pay anything for this type of platform. आपको कुछ भी पैसा नहीं देना इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आपकी आईडी क्रिएट करने के लिए. हर एक स्टूडेंट को जब भी आप प्लेटफॉर्म यूज करोगे अपनी खुद की आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी, एंड देन उस पे आपको अपने पासवर्ड और अपने यूजर नेम के साथ लॉगिन करके आप इन प्लेटफॉर्म्स को यूज कर सकते हो. और जो भी डेटा इसमें लॉगिन होगा इन इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप देख सकते हो. जैसे मैं आपको एक छोटा सा एप्लीकेशन बताऊंगा जिसमें कि एक करंट सेंसर रहेगा. एक करंट सेंसर जो है ये डेटा को लॉगिन करेगा. एक मैं लोड के साथ उस करंट सेंसर को लगा दूंगा और आईओटी प्लेटफॉर्म के थ्रू उसको इंटरनेट के थ्रू मैं कनेक्ट करके इन किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर उस डेटा को लेके जाऊंगा और उस डेटा को रियल टाइम में आप कहीं पे भी वर्ल्ड में आप उसको मॉनिटर कर सकते हो. मैं आपको पासवर्ड दे दूंगा और आप अपने मोबाइल फोन से भी उस डेटा को आप लॉगिन करके आप उस डेटा को देख सकते हो. या अगर वहां पे कोई कंट्रोलिंग डिवाइस है देन यू कैन चेंज द पैरामीटर्स ऑफ दैट कंट्रोलिंग डिवाइस. So these are some of the platforms like Blink. It is a free platform, very good platform, but this can be only used in your mobile phones. So Blink मैं आपको सिखाऊंगा. Students are requested to take small notes of this. You write down these points, otherwise you won't remember anything. आपको जो है ये थोड़ा points आपके copy में लिखना है. Unless and until you write something, you are not going to remember anything. So all of you please take a piece of paper and then small points which I am writing, I am telling you, like the platform names. What is the name of the platform which I will be teaching you? So this is a Blink platform, this is a Ken platform, and this is ThinkSpeaks. So these are 3 platforms. Again, these are free platforms. You don't have to pay anything. इनमें आप अपना कोई भी तरीके का डेटा आईटी पे चलना है तेरी पकड़ 3-3 पे लेके बच्चे उसमें भेज दो. So these are some of the platforms, and you have to how to connect the this ESP8266 to platform. Next, I will be teaching you how to interface basic electrical devices such as relays, contactors. So I will be teaching you what is the difference between relay, what is the contactor, how to. So this relay, contactor, LCD is a liquid display which is used for displaying the parameters of anything you can display with the help of LCD. So LCD will be using this. I will be teaching you how to make the hardware connection as well as how to make the software of this. Then finally we will be doing one project. This project is a IoT based transformer monitoring system. So this IoT based project, it is going to monitor both the temperature of the transformer as well as the oil level of the transformer. As you know that these 2 parameters are very very critical for any kind of transformer. One is the temperature of the transformer, operating transformer, and the oil level. If these 2 parameters are not monitored frequently, and then the temperature due to overloading of the temperature transformer, if the temperature rises beyond certain point, or if the oil level reduces beyond certain point, then the cooling of the transformer is not going to be very effective. So there is a possibility of burning of the winding of the transformer. So these 2 parameters we have to monitor, and then you have to this data has to be put onto some of the platforms. Either it can be a Blink, or it can be a Ken, or it can be ThinkSpeaks. मतलब जो टेम्परेचर की वैल्यू इन किसी भी एक प्लेटफॉर्म पे आ जाए, ताकि आप वर्ल्ड में बैठ के कहीं पे भी आप अपने घर से हो चाहे किसी भी लोकेशन से हो, आप रिमोटली इसको मॉनिटर कर सको. सो ये जो है ये अपना टोटल एजेंडा है. अपन इस पे वी विल फोकस ऑन टू दिस एजेंडा, एंड let us see how much we are able to deliver using this Zoom app, because lot of this are practical based. This all the lot of things are practical based. Means I will be making this circuit. मैं पहले से circuit बना के रखूंगा, बस मैं आपको यहाँ पे check कराऊंगा, क्योंकि मैं बना नहीं सकता हूँ आपके सामने. सो मैं कुछ चीजें बना के रखूंगा और फिर मैं आपको ये सारी चीजें जो है मैं चेक करा दूंगा ऑनलाइन. आप कैमरा ऑन करके आप उस चीजों को वर्किंग करते हुए मैं आपको दिखा दूंगा, और कुछ चीजें जो शेयर हो सकती है स्क्रीन के ऊपर, उन चीजों को मैं शेयर करके आपको डेटा लॉगिन करके दिखा दूंगा. तो ऐसा करके अपन प्रोग्रेस करेंगे. बाकी स्टूडेंट लोग अगर जैसा भी फीडबैक मिलेगा आज के सेशन के अकॉर्डिंग, तो अपन उसके हिसाब से और भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं. पर बहुत ज्यादा कुछ वॉइस थोड़ा तेज करेगा, धीमी हो गई. अच्छा 1 मिनट. अभी ठीक है. ओके.
तो देखो ये मैं बहुत सारी सर्किट्स बना के रखूंगा, आपको जो है मैं चेक करा दूंगा। और चूंकि प्लेटफॉर्म का यूज करके मैक्सिमम जितना हो सकता है अपन उतना कर सकते हैं इस प्लेटफॉर्म को यूज करके, पर बहुत एकदम क्लासरूम जैसा तो नहीं पॉसिबल है। ये आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि क्लासरूम में चीज। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कुछ कुछ स्टूडेंट्स लोगों ने जो है ये इमेज पहले देखी होगी। अब कुछ कुछ स्टूडेंट ने हो, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है बेसिकली जो ये इमेज है, ये इमेज जो है बेसिकली है तुम्हारा नोड एमसीयू का, जो मैं आपको जो है बताऊंगा। मतलब ये जो है अभी आईओटी के प्लेटफॉर्म के लिए स्टूडेंट्स लोग और इंडस्ट्री में भी ये काफी ज्यादा यूज में आ रहा है। ये जो प्लेटफॉर्म, इसमें जो है ये काफी सारी खासियत है इस प्लेटफॉर्म की। लॉट ऑफ एडवांटेजेस हैं इसमें। सबसे ज्यादा एडवांटेजेस ये है कि इसमें वाईफाई एंटीना इनबिल्ट है, पूरा का पूरा वाईफाई नेटवर्किंग इनबिल्ट है। इसके अलावा माइक्रो कंट्रोलर के लिए डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस जो है आप देख सकते हो यहाँ पे, कुछ कुछ D1 D2 D3 D4 ये सारी पिंस दी हुई हैं। तो हार्डवेयर का इंटीग्रेशन डायरेक्टली इसके साथ, मतलब काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है। और ये दूसरा है कि ये ओपन सोर्स है, इसमें जो है आपको इसका जो सॉफ्टवेयर है ये सारा सारा जो है ओपन सोर्स है। तो ये जो है अभी आज के टाइम में ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसको कहते हैं ESP8266। और ESP8266 में कई सारे प्लेटफॉर्म्स आए हैं, तो फिर वो सारी चीजें मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा। तो बेसिकली ये प्लेटफॉर्म है, ये आपको किसी भी शॉप में मिल जाएगा, आपको ऑनलाइन भी आप परचेस कर सकते हो। ये काफी सस्ता सा प्लेटफॉर्म है। आप 300 350 रुपए में आप इसमें लेकर के इसमें काफी सारी चीजें आप कर सकते हो। मैं एक एक करके आपको सारी चीजें बताता चलूंगा। आप घर पे बैठे बैठे इसमें कई कई सारी टाइप की इंटरफेसिंग और इसके साथ कई सारी चीजों को आप लिंक कर सकते हो। बहुत सारे एप्लीकेशन है, सारे एप्लीकेशन अपन नहीं देखेंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आ गए हैं इसके ऊपर। सारे एप्लीकेशंस नहीं देखेंगे, सिर्फ हमारे जो इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड एप्लीकेशंस हैं वो सारे एप्लीकेशंस देखेंगे। मतलब इसमें आप एसएमएस सेंड करने से लेकर के, कॉल लगाने से लेकर के, आप ईमेल भेजने से लेकर के, आप फेसबुक में पोस्टिंग तक कर सकते हो आप इस डिवाइस से, स्टैंड अलोन डिवाइस से। ये जो है डायरेक्टली किसी भी हॉटस्पॉट को जो है कनेक्ट हो जाता है, कहीं पे भी इसको हॉटस्पॉट मिलेगा। इस डिवाइस को सिर्फ हॉटस्पॉट मिलना चाहिए बस, कोई सा भी हॉटस्पॉट, अगर वाईफाई हॉटस्पॉट इसको मिल जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली ये डिवाइस है। कुछ कुछ स्टूडेंट्स लोगों ने देखा होगा डेफिनेटली, पर कुछ कुछ स्टूडेंट्स लोगों ने नहीं देखा होगा। तो ये सारी चीजें अपन अभी एक एक करके देखते चलेंगे। तो अपन स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको कहा है ये बेसिकली नोड एमसीयू है। ये नोड एमसीयू कुछ नहीं है, ये इसके अंदर जो आईसी है, आप थोड़ा थोड़ा करके नोट करते चलेंगे आप सभी स्टूडेंट्स। एक कॉपी और पेन साथ में रखेंगे और थोड़ा थोड़ा करके आप जो है नोट करते चलेंगे। ये नोड एमसीयू बेसिकली दिस नोड एमसीयू प्लेटफॉर्म इज बेसिकली नथिंग बट दिस इज ESP8266। आप ये रिमेंबर करें, दिस नोड एमसीयू इज बेस्ड ऑन ESP8266। ESP8266 is the main IC. So these are some of the characteristics. सबसे पहला मैंने आपको बोला, नोड एमसीयू इज एन ओपन सोर्स फर्मवेयर एंड डेवलपमेंट किट। ओपन सोर्स मींस इसमें कोई भी पैसा नहीं लगता इसका सॉफ्टवेयर के लिए, आपको ये टोटली ओपन सोर्स से कोई भी डाउनलोड कर सकता है नेट से इसका सॉफ्टवेयर। सो इट इज एन ओपन सोर्स फर्मवेयर एंड डेवलपमेंट किट दैट हेल्प्स यू प्रोटोटाइप योर IoT प्रोडक्ट विद इन अ फ्यू स्क्रिप्ट लाइन्स, लुआ। सो एक्चुअली जब नोड एमसीयू आया शुरू में, ये ESP8266 आया, तो ये लुआ जो है, ये लुआ के थ्रू प्रोग्राम होता था। आज के डेट में हम लोग लुआ यूज नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्टली जो है, मैं आपको डायरेक्टली आपको 2-3 प्लेटफॉर्म बताऊंगा उसके थ्रू प्रोग्राम। पर ये शुरू में जब आया तो ये लुआ स्क्रिप्ट के थ्रू अभी भी कुछ कुछ लोग प्रोग्राम करते, तो ये हम लोग नहीं करेंगे। अब देखो मेन इस पे आ जाओ, ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसका पावर कितना है आपको, व्हेनेवर यू कनेक्ट दिस नोड एमसीयू, द पावर है यू हैव टू कनेक्ट इट टू 3.3 वोल्ट and the amount of current which takes is it around 250 milliampere. So काफी पावर में आपको ये ध्यान रखना है, you don't have to connect 5 volt unless and until there is a voltage regulator. नोड एमसीयू में भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें वोल्टेज रेगुलेटर लगा रहता है, तो आप इसमें 12 वोल्ट तक दे सकते हो। बट बेसिकली द जो आईसी है वो 3.3 वोल्ट पे कनेक्टेड काम करता है, इसीलिए किसी भी डिजिटल इनपुट आउटपुट पिंस में भी कभी भी आप 5 वोल्ट आप कनेक्ट नहीं करेंगे इस आईसी को ला करके। अगर किसी भी इनपुट आउटपुट पिंस में आप इसको 5 वोल्ट कनेक्ट कर देंगे तो ये जो है, ये आईसी तुरंत जो है डैमेज हो जाएगा। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, ये जो है, ये नोड एमसीयू जो है 3.3 वोल्ट पे ही काम करता है। और टोटल पावर जो ये लेता है मैक्सिमम, ये 250 मिली एम्पेयर्स। तो ये करंट कम होने के कारण आप इसको बैटरी पावर एप्लीकेशंस में आप यूज कर सकते हो, क्योंकि ये ज्यादा करंट नहीं लेता। आप इसमें बैटरी वाले एप्लीकेशंस के अंदर आप यूज कर सकते हो, क्योंकि इंटरनेट IoT में बहुत सारे एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जो कि बैटरी पावर्ड होते हैं।
तो इसमें जो है आप इसको यूज कर सकते हो। दूसरा देखिए सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट, दिस इज हैविंग हाउ मच रैम, इट इज हैविंग 12 किलोबाइट ऑफ रैम एंड इट इज हैविंग फ्लैश मेमोरी ऑफ, it is having dynamic RAM of 80 kilobytes and flash memory of 200 kilobyte. Now what is this flash memory? Flash memory वो मेमोरी है जिसके अंदर आप जो भी प्रोग्राम लिखोगे वो प्रोग्राम जो है फ्लैश मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। जो भी आप प्रोग्राम लिखोगे वो इस फ्लैश मेमोरी के अंदर स्टोर होगा। तो ये फ्लैश मेमोरी इसके अंदर 200 किलोबाइट्स की फ्लैश मेमोरी है, रैम है 32 किलोबाइट का। ये आप ध्यान रखिए बिकॉज समटाइम इन इंटरव्यू दे आस्क यू दिस व्हाट इज द वोल्टेज लेवल, what is the amount of RAM, what is the flash memory, so this sometime they ask you, so you have to remember this. This next I told you, Node MCU is an open source software and hardware component, it is system on chip. So see this is I told you the ये Node MCU है। ये देखो आप सब लोग स्टूडेंट लोग समझे, ये Node MCU ये पूरा का पूरा इसको इस बोर्ड को Node MCU कहते हैं। इस के अंदर ये जो मेन चिप है इतनी सी है, ये जो है ये है ESP8266, ये मेन चिप है, ये मेन चिप है जो कि ये बाकी ये जो है ये वोल्टेज रेगुलेटर्स हैं और कम्युनिकेशन की आईसी है। ये जो आईसी है ये कम्युनिकेशन की आईसी है और ये वोल्टेज रेगुलेटर है। ये वोल्टेज रेगुलेटर का काम है, इफ यू गिव एनी वोल्टेज ग्रेटर देन 3.3 volt, then this voltage regulator is going to reduce it to 3.3 volt. So this is the voltage regulator. So this voltage regulator along with this IC, if they have combined it into a single board, so this is called as Node MCU. But the main chip is this, the main chip is this one, ESP8266, ये main chip है। अभी मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आपको ये ESP8266 अलग से भी मिल सकता है खरीदने को if you want to purchase, but this is the best option. Don't purchase an individual 8266 क्योंकि बहुत प्रॉब्लम होगा। सबसे पहला तो वोल्टेज रेगुलेटर नहीं होगा, 3.5 वोल्ट आपको डायरेक्टली देना पड़ेगा। 3.5 वोल्ट के लिए डायरेक्टली आप 3.5 वोल्ट के लिए डायरेक्टली आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। प्लस इसमें कम्युनिकेशन के लिए आईसी जो है वो आईसी भी आपको नहीं मिलेगा। सो आपके लिए कम्युनिकेशन के लिए अलग से जो है आपको आईसी ऐड करना पड़ेगा। सो कोई एडवांटेज नहीं है, आप डायरेक्टली नोड एमसीयू खरीदे, ESP8266 अलग से ना खरीदे। ESP8266 अलग से भी आपको शॉप में मिल जाएगा, सिर्फ इतना सा आईसीयू आपको दे देगा अगर आप अलग से ESP8266। तो नोड एमसीयू बेसिकली ये प्लेटफॉर्म है, ये जो टोटल प्लेटफॉर्म है इसको आप नोड एमसीयू कहते हैं। इसमें जो मेन आईसी है वो ESP8266 है। तो नोड एमसीयू क्या है? नोड एमसीयू इज ESP8266 प्लस वोल्टेज रेगुलेटर, दिस इज द वोल्टेज रेगुलेटर प्लस कम्युनिकेशन आईसी। और ये यहाँ से आपको यूएसबी टाइप डी कनेक्टर है जो आप नॉर्मल मोबाइल फोन चार्जिंग के लिए यूज करते हैं, आप इसी कनेक्टर को यूज करके इसके अंदर डेटा को डाउनलोड कर सकते हैं और इसी आईसी के थ्रू डेटा इसके अंदर डाउनलोड होगा। आपको किसी भी तरीके का हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। सो गो फॉर दिस नोड एमसीयू ओनली, डोंट परचेज डायरेक्टली ESP8266। सो दिस इज द मेन आईसी ESP8266। So these are some of the characteristic. So the main component of Node MCU is ESP8266. Arduino like device, किस तरह का डिवाइस है? Arduino type डिवाइस है। जो लोग Arduino कर रहे हैं वो जानते हैं D1, D2, D3 Arduino में पिंस होती हैं डिजिटल के लिए, सीरियल डाउनलोडिंग के लिए और काफी सारी चीजें जो है पूरा का पूरा Arduino से मैच करता है। पिंस जो है ये सारी पिंस जो है प्रोग्रामेबल है, ये लिखा हुआ है विद प्रोग्रामेबल पिन, सारी की सारी पिंस प्रोग्रामेबल है। इसका मतलब है किसी भी पिन को आप इनपुट बना सकते हैं और किसी भी पिन को आप आउटपुट बना सकते हैं। किसी भी पिन को इनपुट के जैसा यूज कर सकते हो, किसी भी पिन को आउटपुट के जैसा यूज कर सकते हो, किसी भी पिन को पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन के लिए यूज किया जा सकता है। सारी की सारी पिंस जो है प्रोग्रामेबल है। तो ये इसका एक फीचर है। बिल्ट इन वाईफाई मैं आपको बोल ही चुका हूँ, वाईफाई का एंटीना इसी के अंदर लगा हुआ है, वाईफाई की नेटवर्किंग भी इसी के अंदर है, तो आपको कोई हेडेक लेने की जरूरत नहीं। बस अपने मोबाइल फोन का हॉटस्पॉट ऑन कर देंगे और डायरेक्टली ये डिवाइस आपके मोबाइल फोन के हॉटस्पॉट के साथ लिंक हो जाएगा। तो ये जो है ये वाईफाई इनबिल्ट एंड एनेबल्ड है। पावर्ड वाया यूएसबी, डायरेक्टली यूएसबी से पावर ले लेता है। अगर आप यूएसबी, अगर इसका कोई पावर आप देना नहीं चाहते हैं शुरू में जब आप शॉप से खरीद के लाएंगे आपको कुछ भी कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्टली जो है आप डेटा केबल के थ्रू, अपना जो मोबाइल फोन का केबल है वो केबल के थ्रू आप इसको डायरेक्टली कनेक्ट करिए। यूएसबी में ऑलरेडी 5 वोल्ट पावर रहता है। स्टूडेंट लोग, मुझे लगता है बहुत से स्टूडेंट लोग को पता है कि यूएसबी में डायरेक्टली 5 वोल्ट का पावर रहता है। वो 5 वोल्ट का पावर डायरेक्टली यहाँ जाएगा और इस सारे डिवाइस को जो है पावर दे देगा। और इसके अंदर वोल्टेज रेगुलेटर मैंने पहले ही बता चुका हूँ, 5 वोल्ट डायरेक्टली नहीं जाएगा। आप कभी भी 5 वोल्ट इसको नहीं देंगे। वो मैक्सिमम कितना वोल्टेज दे सकते हैं? मैक्सिमम देखिए इसके अंदर वोल्टेज रेगुलेटर लगा हुआ है, तो आप अगर वोल्टेज देंगे इसको डायरेक्टली तो आप 12 वोल्ट तक आप दे सकते हैं। 12 वोल्ट से ज्यादा आप इसमें भी नहीं दीजिएगा, क्योंकि जो ये वोल्टेज रेगुलेटर है ये 12 वोल्ट के ऊपर, ये वोल्टेज रेगुलेटर जो है खराब होने का वो रहेगा, तो हो सकता है आपकी आईसी डैमेज हो जाए। तो मैक्सिमम 12 वोल्ट देंगे। तो 12 वोल्ट जब देंगे तो ये वी इनपुट पिन है, इस पे देंगे, तो ये वी इनपुट डायरेक्टली ये रेगुलेटर से जुड़ा हुआ है, ये वोल्टेज को कम करके 3.3 वोल्ट बनाएगा। तो जब आप
हेलो, एनी स्टूडेंट वांट्स टू आस्क? अनुराग, सर आप कंटिन्यू फिर भी करिए। नहीं आ रहा। अनुराग, Continue- ओके 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 ओके। तो चीजें समझ में आएंगी, आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, अपन चीजें एक एक करके अपन आ रहे चलिए हैं, देखता वायरिंग हूँ। वायरिंग सब चीजें देखते हैं अपन एक एक करके। तो बेसिकली जो है इसके अंदर वाईफाई इनबिल्ट है, पावर यूएसबी से डायरेक्टली पावर हो जाता है, और मैंने जो आपको सबसे बड़ा एडवांटेज बताया क्या है, ये लो कॉस्ट है। ये जो है काफी कम कॉस्ट में आ जाता है, तो आप जो है इसको यूज कर सकते हो इजीली अपने प्रोजेक्ट्स में। एक दो अगर खराबी हो जाए तो आपको ज्यादा हेडेक लेना है, तो जो है आप इसको चेंज कर सकते हो। अब देखो ये है बेसिकली ये जो है ये स्ट्रक्चर है, ये ESP8266 का मैं ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर करके थोड़ा सा दिखाऊंगा, एक मिनट। जो मैं पिन कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहा था, मैं आपको थोड़ा सा क्लियरली दिखा देता हूँ, एक मिनट थोड़ा सा शेयर कर रहा हूँ। अब देखो ये डायग्राम मुझे लग रहा है अब क्लियर है। अब देख लो यहाँ से जो है ये जो जो काम की चीजें मैं वो बताता चलूंगा, ज्यादा अपन अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे चीजों के ऊपर। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान देने की, ये तुम देख लो, ये जो इनपुट आउटपुट पिन्स है, स्टूडेंट लोग यहाँ देखे, यहाँ से मुझे लग रहा है क्लियर है। ये देखो D0, D1, D2, फिर D3, D4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो इसमें कितने इनपुट आउटपुट पिन्स है? बेसिकली 10 इनपुट आउटपुट पिन्स है। जो ये बेसिकली जो आप यूज करोगे ये 10 इनपुट आउटपुट पिन्स है। इसके अलावा दो पिन्स और यहाँ पे है, 11 और 12। तो ये जो है ये टोटल 13 पिन है जो आप यूज कर सकते हो। और आप एक चीज यहाँ से नोटिस करना, ये जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको ये बार बार बता दूंगा कि आपको जो है जब प्रोग्रामिंग करोगे तो आपको क्या ध्यान रखना है। और जो वोल्टेज लेवल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप 12 वोल्ट कनेक्ट करोगे तो ये V इनपुट पिन पे आप कनेक्ट करोगे। इसमें हमेशा ध्यान रखना, दो बटन है इसके ऊपर, एक रीसेट करने के लिए, एक फ्लैश करने के लिए। इन दोनों को आपको दबाने की कोई जरूरत नहीं है, इसका कोई यूज नहीं है। अगर आप रीसेट बटन दबाओगे तो ये सिस्टम रीसेट हो जाएगा, और अगर फ्लैश दबाओगे तो ये फ्लैश दबा के रखोगे तो इसकी प्रोग्राम की जो मेमोरी है वो मिट जाएगा। तो इसको आपको कनेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये देखो, ये अगर 3.3 वोल्ट आपके पास अवेलेबल है तो आप डायरेक्टली इस पिन से 3.3 वोल्ट दे सकते हो। और आपके पास किसी के पास 3.3 वोल्ट अवेलेबल नहीं होता है, क्योंकि ज्यादातर हम जो वोल्टेज रेगुलेटर यूज करते हैं वो 5 वोल्ट का या 12 वोल्ट का होता है। तो आप जो 5 वोल्ट या 12 वोल्ट की सप्लाई आपके पास अवेलेबल रहेगी, अगर आपको उससे कनेक्ट करना है तो आप जो 5 वोल्ट की सप्लाई है वो V इनपुट पिन पे दोगे। ये सबसे ज्यादा आपको ध्यान रखने वाली चीजें हैं। ये V इनपुट पे आप 5 वोल्ट की या 12 वोल्ट की सप्लाई दोगे। इसके अलावा आप किसी भी पिन पे 5 वोल्ट को टच नहीं कराओगे। अगर आपने यहाँ 3.3 वोल्ट पे 5 वोल्ट की सप्लाई कनेक्ट कर दी तो तुरंत जो है ये जो है आईसी आपकी जो है पूरी की पूरी डैमेज हो जाएगी। इसके अलावा आपको दूसरा ध्यान ये रखना है, इनमें से किसी भी इनपुट आउटपुट पिन पे आप कभी भी 5 वोल्ट का टच नहीं करोगे, क्योंकि यहाँ जो मैक्सिमम वोल्टेज आता है ये 3.3 वोल्ट आता है। यहाँ पे भी अगर आप डायरेक्टली 5 वोल्ट आप किसी भी समय पे अगर आपने टच कराया तो ये टोटली जो है ये पिन जो है आपकी डैमेज हो जाएगी। तो ये दो चीजें आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है इसके कनेक्शन के टाइम। और दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, मैंने पहले बता दिया, इनपुट आउटपुट पिन इसके बता दिए हैं। ये ग्राउंड की पिन हैं, आप ये देख सकते हो। इनमें से किसी भी एक पिन पे आप ग्राउंड दोगे तो सारी की सारी ग्राउंड है, सब सारी की सारी इंटरकनेक्टेड है, तो ये सारा का सारा ग्राउंड हो जाएगा। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अब आप प्रोग्रामिंग करोगे उसमें जो है आप प्रोग्रामिंग करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि ये पिन नंबर जो D1 है इसका नंबर जो है 5 के थ्रू जो है प्रोग्रामिंग के टाइम पे 5 लिखना है। ये चीज ध्यान रखना है, ये स्टूडेंट लोगों को पता नहीं रहता है। प्रोग्रामिंग सीख लेते हैं कहीं से और फिर जो जब प्रोग्रामिंग करते हैं तो उस समय पे जो है ये गड़बड़ी करते हैं। वो क्या करते हैं, D1 है तो प्रोग्रामिंग में भी D1 लिखेंगे और यहाँ पे कोई रिले लगा देंगे। तो यहाँ पे ये जब रिले लगाएंगे और D1 यूज करेंगे तो ये जो आईडी है वो आपका जो 1 है उसको यहाँ नहीं मानेगी। इसके कारण जो है आप लगा हुआ रिले आपका, आपने प्रोग्राम तो सही बनाया लेकिन वो काम नहीं करेगा। इसीलिए ये मैपिंग आपको याद रखना है, ये नेट से आपको ये मैपिंग मिल जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है 0 का जब आप प्रोग्रामिंग करोगे तो उसको किस नंबर से पहचानोगे, 16 नंबर से। जब आप 1 लिखोगे तो इसको किस नंबर से पहचानोगे, 5 नंबर से। जब 2 लिखोगे तो जब 2 पिन नंबर यूज करना है तो उसको आप किस नंबर से पहचानोगे, चौथे नंबर से। जब आपको D3 पिन पे रिले लगाया है तो अब आप उसको किस नंबर से प्रोग्रामिंग में लिखोगे, GPIO 0। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसके अलावा जो है ये काम नहीं करेगा ये चिप।
तो ये 2-3 चीजें आपको ध्यान रखना है। बाकी शुरू में तो आप जब ये चिप खरीद के लाएंगे तो आप डायरेक्टली 5 वोल्ट आप कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा अपना यूएसबी मोबाइल फोन का केबल लगाए डायरेक्टली यहाँ से, और जो है आपको जो है ये डायरेक्टली ये चिप जो है काम करती हुई मिलेगी। मैं आपको थोड़ा सा ये चिप जो है मैं दिखा देता हूँ वीडियो के थ्रू। मैं आपको 1 मिनट में वीडियो को वो करता हूँ शेयरिंग बंद करके। Subrata sir, हाँ यस सर। sir, let us conclude this today's अच्छा session. टुडेस, ओके 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 ओके।